Hello and welcome in my video. In this video, we will continue the first chapter of Geography, Resource and Development. In previous video, we have discussed about what is resource and the resources on the basis of renewability, origin, ownership. In this video, we will continue the same chapter. One topic is left on the basis of development, status and development. Okay, so let's continue. On the basis of the status of development, resources are of two types: potential resource and developed resource. So let's see what is potential resource. Resources which are found in a region but have not been utilized, means resource ऐसा रिसोर्स जो हमारे आसपास हो, हमारे एरिया में हो, ठीक है, हमारे कंट्री में हो, बट वी हैव नॉट बीन यूटिलाइज, और हम लेकिन हम लोगों ने उसको यूटिलाइज नहीं किया हो, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, गुजरात एंड राजस्थान, have enormous potential for the development of wind and solar energy, but so far these have not been developed properly, ठीक है. So in for example, in western part of India like Gujarat and Rajasthan, in these states there are enormous possibility of for the development, for the utilization of wind and solar energy, ठीक है, but still we are not developed these utilization of all these resources accordingly, properly. Okay, next one is developed resource. अच्छा हाँ, एक चीज और, पोटेंशियल रिसोर्स को यूज करने की टेक्नोलॉजी है हमारे पास, लेकिन हम अभी इसको यूज नहीं कर रहे हैं. Okay, next one is developed resource. Developed resource is also known as actual resource. So according to the word, actual resource means the resource which we have and we are knowing, we have surveyed these resources, we are knowing what type of quality of these resources are available, what, how much it is available in our region or in our country. Okay, so such type of resources are known as developed resource. The development of resources depend on technology and level of their feasibility. Feasibility means आसानी से उपलब्धता. ओके, सो एक्चुअल रिसोर्स को हम उतना ज़्यादा से ज़्यादा तभी यूटिलाइज कर सकते हैं जब हमारे पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल हो. ओके, कंट्री में टेक्नोलॉजी डेवलप्ड हो. नाउ नेक्स्ट वन इज, on the basis of the status of development, there are resources classified on the basis of stock and reserve. Okay, so let's see what is stock. Stock materials in the environment which have the potential to satisfy human needs, but human beings do not have the appropriate technology. यहाँ पर इस वर्ड को समझना जरूर होगा. Okay, the resources we have, but we are knowing कि this resources has the potential to satisfy our need. इस रिसोर्स को हम यूज करेंगे तो हम अपनी जरूरतों को पूरा कर लेंगे. ओके, बट इन एब्सेंस ऑफ एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, लेकिन उस रिसोर्स को यूज करने का हमारे पास टेक्नोलॉजी अभी नहीं है. ऐसे रिसोर्स को हम लोग क्या कहते हैं? स्टॉक. ओके, मटेरियल्स इन द एनवायरनमेंट विच हैव द पोटेंशियल, उसके पास क्षमता है to satisfy human needs, but human beings do not have the appropriate technology to access these resources, are known as stock. For example, water is compound of two inflammable gas, hydrogen and oxygen, which can be used as a rich source of energy, but we do not have the required technical know-how. Know-how means हम अभी तक नहीं जान पाए हैं कि कैसे इन चीज़ों को यूज एनर्जी के रूप में कर सकें. ओके, वाटर का यूज हम एनर्जी के रूप में कैसे कर सकें. टू यूज देम फॉर दिस पर्पज, हेंस इट कैन बी कंसिडर्ड एज स्टॉक. हम जानते तो हैं कि वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग दोनों ही हाईली इनफ्लेबल गैस होती हैं.
लेकिन अभी तक हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है कि इन प्लेस ऑफ डीजल एंड पेट्रोल हम वाटर को यूज़ कर सकें एज अ फ्यूल। हाँ, हाइड्रोजन गैस से चलने वाली गाड़ियाँ डेवलप प्रोजेक्ट वर्क के रूप में एक दो एग्जाम्पल मिलते हैं, लेकिन वहाँ पर हाइड्रोजन गैस यूज़ किया जा रहा है, नॉट वाटर। ओके, तो ऐसे रिसोर्स जिसके बारे में हमको जानकारी तो है कि हम इसको यूज़ कर सकते हैं, इन फ्यूचर वी विल यूज़ ऑल दीज थिंग्स, but in present time we have no any appropriate technology to convert all these things as a resource. Next one is reserve. Okay, what is reserve? Reserve is a subset of stock. Reserve भी एक तरह का stock ही होता है, which can be put into use with the help of existing technical know-how, but they use their use has not been started. रिजर्व एक ऐसा रिसोर्स होता है जो जिसके बारे में हमें जानकारी तो है और उसके यूज़ करने की टेक्नोलॉजी भी हमारे पास है, बट हम अभी उसको यूज़ करना शुरू नहीं किए हैं। सो सच टाइप ऑफ रिसोर्स इज रिजर्व। यहाँ पर दो टॉपिक पे कंफ्यूजन हो सकता है, पोटेंशियल और स्टॉक पे। तो फिर से मैं क्लियर कर दे रहा हूँ कि व्हाट इज पोटेंशियल एंड व्हाट इज स्टॉक। पोटेंशियल एक ऐसा रिसोर्स है जो हमारे पास अवेलेबल है और उसको यूज़ करने की टेक्नोलॉजी हमारे पास है, लेकिन अभी हम उसको 100% यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। ऐसे रिसोर्स को पोटेंशियल कहते हैं। और स्टॉक ऐसा रिसोर्स है जो रिसोर्स तो है लेकिन उसको यूज़ करने की टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है, तो ऐसे रिसोर्स को स्टॉक कहते हैं। होप you all understand. If there is any confusion, so ask me through your comment. Next topic is sustainable development. So I hope the word development is very clear to you all. What is development? ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, ये हमारा टॉपिक है। सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस without damaging the environment, and development in the present should not compromise with the needs of the future generation. In another word, sustainable development is a type of development which sustain for lifelong, for present as well as for future requirement. सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसा डेवलपमेंट है जो प्रेजेंट जनरेशन की, प्रेजेंट पॉपुलेशन की डिमांड्स को पूरा करते हुए भी कैपेबल हो फ्यूचर्स डिमांड को फुलफिल करने के लिए। सपोज करो आज हमारे पास कार है, ठीक है, पहले हम लोग बैलगाड़ी से चलते थे, पहले पैदल चलते थे, फिर बैलगाड़ी हुआ, फिर हॉर्स राइडिंग हुआ, फिर अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन डेवलप हुए, और आज हम लोग डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से सिर्फ लैंड सरफेस पे ही नहीं, वाटर सरफेस पे, इवन स्काई, इवन स्पेस पे भी हम लोग जा रहे हैं। तो ये डेवलपमेंट हुआ। ओके, पहले पैदल चलते थे, फिर हमने क्या बनाया, व्हील, और आज हम लोग मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को यूज़ करना है। तो ये सिनेरियो क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ। लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो होता है कि आज जो डेवलपमेंट है, क्या वो डेवलपमेंट कल भी रहेगा? अगर ऐसा कल भी रहेगा तो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, और कल को अगर नहीं रहेगा तो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं है। फॉर एग्जांपल, आज हमारे पास कार है, ठीक है, ये हमारा डेवलपमेंट है, लेकिन कल को अगर फॉसिल फ्यूल खत्म हो जाए तो जो हमारे व्हीकल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, वेस्ट। फ्यूचर जनरेशन को हम उस व्हीकल को पास ऑन कर पाएंगे, उस टेक्नोलॉजी को पास ऑन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। अगर नहीं कर पाएंगे तो वो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं हुआ। ओके, सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स अ टाइप ऑफ डेवलपमेंट which is capable to fulfill our present need as well as the requirement of future generation, and that development should not damage environment. Okay, so this one is sustainable development. After sustainable development, there is a next topic, Rio de Janeiro Earth Summit 1992.
Where is Rio de Janeiro? It is in Brazil. It is the capital of Brazil. In 1992, there was one summit meeting was held. Now let's see. Rio de Janeiro, a summit held in June 1992 in Rio de Janeiro, capital of Brazil, were more than 100 heads of states gathered for the first International Earth Summit. 1992 में जून 1992 में ब्राज़ील के कैपिटल रियो डी जेनेरियो में, ठीक है, मोर देन 100 कंट्रीज के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे इकट्ठा हुए, और ओके, एंड दैट वाज द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट। मींस उस मीटिंग में, उस समिट में हमें जो 100 हेड्स के रिप्रेजेंटेटिव थे वो ग्लोबल प्रॉब्लम पे डिस्कस करने वाले थे। द मीटिंग वाज organized to discuss over the global problem. The main problems were, first one is environmental protection and social. Second one is socio-economic development at the global level. Okay. This summit endorsed the global forest principles and adopted Agenda 21 for achieving sustainable development in the 21st century. In that meeting, the representative of more than 100 countries discussed over the global problem. And what was the global problem at that time? Environmental problem, global warming, social problem, means like pandemics, poverty, disease, terrorism, ये सब ग्लोबल प्रॉब्लम थे जिन पे वहां पर डिस्कस हुआ। ओके, and in that summit, in that meeting, the global forest principle means एक ऐसा नियम बनाया गया जो पूरे वर्ल्ड को फॉलो करना था कि हमें किस एरिया में कितना परसेंटेज फॉरेस्ट रखना है, हमें क्या करना है, व्हाट स्टेप्स आर एसेंशियल टू कंजर्व फॉरेस्ट। ओके, नाउ फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द 21st सेंचुरी, क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन क्या था हमारा, नेक्स्ट सेंचुरी कौन सी थी, 21st सेंचुरी थी। तो 21st सेंचुरी को अच्छा बनाने के लिए, डेवलप करने के लिए कुछ पॉइंट्स पे डिस्कस हुआ, कुछ सजेशंस एक्सेप्टेबल हुए, और उन्हीं को कहा गया एजेंडा 21 इसलिए कि हम नेक्स्ट सेंचुरी में जा रहे हैं, 21st सेंचुरी में, उस समय के अकॉर्डिंग। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज एजेंडा 21. Agenda 21 was the declaration signed by world leaders in 1992 at the United Nations Conference on Environment and Development, इसको short form है UNCED, which took place at Rio de Janeiro, Brazil, which aimed to achieve global sustainable development. ठीक है, जो मीटिंग हुई थी उसमें ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव करने के लिए कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए गए कि कैसे हम इन चीज़ों को कर सकते हैं, उसी को एजेंडा 21 कहा गया। इन दैट एजेंडा लीडर्स एग्री टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ environmental damage, poverty, disease, terrorism through global cooperation on common interest. उस मीटिंग में ये पॉइंट डिस्कस किया गया कि हम ग्लोबल प्रॉब्लम जैसे इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है, टेररिज्म है, पॉवर्टी है, डिजीज है, इन सबको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो ये पॉइंट डिस्कस किया गया, इस बात पे सभी कंट्रीज एग्रीड हुए कि ये सारी प्रॉब्लम्स ग्लोबल प्रॉब्लम है, तो हम इसको कोऑपरेशन से ही और सभी के इंटरेस्ट को ध्यान में रख करके ही सॉल्व कर सकते हैं, थ्रू म्यूचुअल नीड्स एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हम किसी एक कंट्री को या किसी एक व्यक्ति को एक के ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर हम लोड कर देंगे उसके ऊपर, तो वो ये ग्लोबल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, इसलिए हमें सबको मिल करके काम करना होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया. First of all, we have to understand what is planning. Planning is required wherever the time is limited or the resources are limited. जिस चीज की हमारे पास कमी होती है उसको यूटिलाइज करने के लिए हम लोग प्लान करते हैं, ठीक है।
24 आवर हमारे पास होते हैं, लेकिन जैसे एग्ज़ाम आता है हमारे पास उस 24 आवर में स्टडी टाइम कम पड़ने लगता है, तो हम लोग क्या बनाते हैं, टाइम टेबल, वो हमारा प्लानिंग हुआ। ओके, तो वैसे हमारे कंट्री में रिसोर्स अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स इन कंपैरिजन ऑफ कंजप्शन और इन कंपैरिजन ऑफ डिमांड कम है, लिमिटेड है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूटेड है। दैट्स व्हाई वी हैव टू मेक अ प्लान। नाउ इन इंडिया देयर इज अ 3 स्टेप फॉर द प्लानिंग ऑफ रिसोर्सेज। फर्स्ट वन इज, पहला स्टेप में क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन ऑफ द कंट्री। पहले आइडेंटिफाई किया जाता है, खोजा जाता है। दिस इन्वॉल्व्स सर्वेइंग, मैपिंग एंड क्वालिटेटिव्स एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन एंड मेजरमेंट ऑफ द रिसोर्स। फर्स्ट स्टेप में किसी भी एरिया में सर्च होता है, सर्वे होता है, ये इस एरिया में किस तरह के रिसोर्सेज पॉसिबल है, और वो अगर हैं तो किस क्वालिटी के हैं, किस क्वांटिटी के हैं, ठीक है, और कितने हैं। सेकेंड स्टेप, evolving a planning structure endowed with appropriate technology, skill and institutional setup with implementing resource development plan. Third is matching the resource development plans with overall national development plan. फिर थर्ड स्टेप में हम जो प्लान बनाए हैं उसको नेशनल डेवलपमेंट प्लान से मैच करते हैं कि क्या ये जो प्लानिंग है वो फ्रूटफुल होगा कंट्री के लिए या नहीं, या उस स्टेट के लिए या नहीं। ओके, सो दिस वन इज द लास्ट स्लाइड। होप you will understand after watching this video. If you have any confusion, so consult me.